Welcome, my dear students. In this session, we are going to discuss some important concepts of divisibility. We'll be discussing divisibility of a to the power n plus b to the power n, also a to the power n minus b to the power n. We'll also be discussing binomial expansion and how it helps in solving a few problems of divisibility. And then finally, we'll be discussing some CAT PYQs on these. Start करते हैं सेशन को. So first of all, divisibility of a to the power n plus minus b to the power n. So first case, when we have a to the power n minus b to the power n. Now n can be any natural number. ठीक है, n can be any natural number. And for any natural number n, a to the power n minus b to the power n is always divisible by a minus b. Because we can write a to the power n minus b to the power n as a to the power n minus b to the power n as a minus b into a to the power n minus 1 plus a to the power n minus 2 into b plus a to the power n minus 3 into b square and so on till b to the power n minus 2 into a plus b to the power n minus 1. अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. द ओनली टू टर्म्स विल बी द फर्स्ट टर्म a into a to the power n minus 1 which will be a to the power n and last term minus b into b to the power n minus 1 which will be b to the power n with negative sign. So definitely a minus b is a factor in all cases. A minus b is a factor. So that is why a to the power n minus b to the power n is always divisible by a minus b. Okay. Now specific case is that n can be odd or n can be even. N can be odd or n can be even. So if n is odd, then a to the power n minus b to the power n is always divisible by only by then we can say that the expression is divisible by a minus b. और भी factors होंगे. I mean this is also a factor, but this will depend on the values. ठीक है. The basic factor is a minus b. But if n is even, then the expression is divisible by a minus b and a plus b both. A minus b and a plus b both. So if n is even, we can also factorize a to the power n minus b to the power n as equal to a plus b into a to the power n minus 1 minus a to the power n minus 2 into b plus a to the power n minus 3 into b square minus a to the power n minus 4 into b cube and so on, and at last minus a into b to the power n minus 2 plus b to the power n minus 1. ओके. फर्स्ट टर्म में b का पावर कितना है? 0 है. लास्ट टर्म में b का पावर कितना है? n माइनस 1 है. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए? फर्स्ट टर्म में b का पावर 0 है, लास्ट टर्म में b का पावर n माइनस 1 है. बेसिकली फर्स्ट टर्म हमारा है a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b टू द पावर 0. लास्ट टर्म है a टू द पावर 0 इंटू b टू द पावर n माइनस 1. तो n माइनस 1 से a का पावर हो गया है 0. n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 टिल 0. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए हमारे n टर्म्स. और यू कैन सी फर्स्ट टर्म में प्लस आ रहा है, देन माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस एंड सो ऑन. इजंट इट सो? अरे एक सेकंड, लास्ट टर्म में माइनस आएगा, एक बार लिख दिया, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा. अल्टरनेट प्लस माइनस है. लास्ट टर्म में देयर विल बी माइनस बिकॉज अल्टीमेटली हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n. तो अगर प्लस माइनस में लास्ट में माइनस आ रहा है तो दैट इंप्लाइज कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन होना चाहिए. नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा तभी तो ये टर्म पॉसिबल होगा. दैट इज व्हाई इफ n इज इवन दिस एक्सपेंशन इज पॉसिबल and a plus b is a factor in that case. अगर n ऑड होगा तो इस तरह से हम एक्सपेंशन कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज लास्ट में माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 नहीं आएगा, उसके केस में प्लस आ जाएगा. दैट इज व्हाई a टू पावर n माइनस b टू पावर n बन ही नहीं पाएगा. सो व्हेन n इज इवन
a to the power n minus b to the power n is divisible by a plus b as well. एग्जाम्पल लेना हो ले सकते हो, a क्यूब माइनस b क्यूब, दिस इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, एन इज ऑड इन दिस केस, तो a प्लस b से a माइनस b से डिविजिबल है, a प्लस b से डिविजिबल नहीं है, बट इफ a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इज देयर, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फैक्टराइज करोगे, दिस विल बी a प्लस b इंटू a माइनस b, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर into a plus b into a minus b. Okay. Similarly, you can take a to the power 6 minus b to the power 6. That will be basically a square whole cube minus b square whole cube. The factor will be a square minus b square into a to the power 4 plus a square b square plus b to the power 4. And a square minus b square is multiple of a plus b and a minus b. Okay. So a to the power n minus b to the power n वाला केस तो हमें समझ में आ गया. The second case is for a to the power n plus b to the power n. Okay. In this case also n can be even or odd. So if n is odd, then a plus b is a factor. If even, no conclusion can be drawn. If n is odd, a plus b will be a factor. So if n is odd, a to the power n plus b to the power n, in case of n odd, is equal to a plus b into a to the power n minus 1 minus a to the power n minus 2 into b plus a to the power n minus 3 into b square and so on. Minus a into b to the power n minus 2 plus b to the power n minus 1. और अल्टरनेट प्लस माइनस है, फर्स्ट टर्म में आ रहा है a टू द पावर n माइनस 1, b की पावर 0 है, लास्ट टर्म में b की पावर n माइनस 1 है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ टर्म्स आर n नंबर ऑफ टर्म्स है, और स्टार भी प्लस से हो रहा है, एंड भी प्लस पे हो रहा है, यानी कि n मस्ट बी ऑड. Okay, so when n is odd, a plus b is a factor, otherwise not. Okay, clear? एग्जाम्पल ले सकते हो इसका भी, ए क्यू प्लस बी क्यू, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके, और ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5, दैट विल बी ए प्लस बी इंटू ए टू द पावर 4 माइनस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब प्लस बी टू द पावर 4. Okay, clear है? Now another important part, that is binomial expansion. Even if you've not read it earlier, बस ध्यान से एक बार देखना, समझना, बातें समझ में आ जाएंगी, कोई भी टेंशन की बात नहीं है. बेसिकली हमें जो कंक्लूजन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. स्टार्ट हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन से करना है, बट अल्टीमेटली जो कंक्लूजन हमें डिराइव करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो इफ द एक्सप्रेशन इज a प्लस बी टू द होल पावर n, और सबसे पहली बात अभी तक हमने देखा है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, बोथ आर नॉट इक्वल. कभी भी कंफ्यूज नहीं होना दोनों में. तो a प्लस बी टू द होल पावर n इज नॉट इक्वल टू a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n. सिमिलरली एज a प्लस b का होल क्यूब इज नॉट इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, बोथ आर डिफरेंट. तो a प्लस b होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस n c1 इंटू a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस n c2 into a to the power n minus 2 b to the power 2 and so on. And lastly n c n minus 1 times a to the power 1 b to the power n minus 1 plus n c n a to the power 0 b to the power n. ठीक है, और n c n is equal to 1 only. Similarly यहाँ पे n c 0 था. So this is complete expansion of binomial of a plus b to the power n. Okay, अब देखो यहाँ पे छोटी छोटी बातें जिनको समझना है. लेट अस से कि b की जगह हमने 1 प्लेस कर दिया, b इज इक्वल टू 1 रख दिया एक्सप्रेशन. सो इफ b इज इक्वल टू प्लस 1, दिस बिकम्स a प्लस 1 टू द होल पावर n, एंड दैट इज इक्वल टू n c 0 इज 1 ओनली. सो a टू द पावर n
प्लस एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन, और बी टू द पावर वन यानी 1 टू द पावर 1 है, प्लस एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू 1 स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड लास्टली एन सी एन माइनस वन ए टू द पावर 1 और 1 टू द पावर एन माइनस वन, और प्लस एन सी एन 1 टू द पावर एन, 1 की कोई पावर हो वो तो 1 ही हो जाएगा। सो एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा ए टू द पावर एन प्लस एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू इंटू ए टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन टिल एन सी एन माइनस वन ए प्लस 1। अब बाकी सब कुछ भूल जाओ, बस सारे के सारे टर्म्स को देखो। फर्स्ट टर्म ए टू द पावर एन, सेकंड है एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन, थर्ड है एन सी टू इंटू ए टू द पावर एन माइनस टू, और एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी फोर, ये सारे के सारे जो टर्म्स है हमारे, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ, ये सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। सो बेसिकली एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ एन, एन का बोल रहे हैं, हाँ मल्टीपल एन का तो यही है, बट ए का मल्टीपल भी है बिकॉज ए टू द पावर एन माइनस वन है, एन सी टू इंटू ए टू द पावर एन माइनस टू, दिस इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ ए। तो सारे टर्म्स हमारे ए के मल्टीपल है, यानी ए कॉमन ले सकते हो। सो यू कैन राइट दिस एज ए इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन till last term n c n minus 1 plus 1. So basically if we replace this by k, so this total is equal to a into k plus 1, basically a multiple of k plus 1. क्या ये बात समझ में आती है? A multiple of k plus 1. So in general if we are dividing a plus 1 to the whole power n by a and the question is what will be the remainder, a plus 1 to the power n by a and question is what will be the remainder, तो we know a plus 1 to the power n ultimately क्या बन जाता है, ultimately is a into k plus 1, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम a से, तो a into k तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा a से बिकॉज a का मल्टीपल ही है, बच जाने वाला है सिर्फ 1, तो अल्टीमेटली रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 1 ओनली, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 1 ओनली। दैट इंप्लाइज कि अगर हमने लिखा कि 6 to the power 5 and this we have to divide by 5 and question is what will be the remainder, so we can write 6 to the power 5 as 5 plus 1 to the power 5 and that is divided 5, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी 1 ओनली, रिमाइंडर विल बी 1 ओनली। क्लियर है? ठीक है, एक और एग्जांपल, 17 to the power 17 and this is divided by 16, so what will be the remainder, this can be written as 16 plus 1 to the whole power 17 डिवाइडेड बाई 16, और रिमाइंडर पूछ रहा है क्वेश्चन से, और हमें पता है a प्लस 1 टू द होल पावर n अल्टीमेटली हो जाता है हमारा 16 का मल्टीपल प्लस 1, दिस इज डिवाइडेड बाई 16, तो रिजल्ट आ जाएगा 1। क्लियर है? ओके, ये तो हो गया, जबकि हमारा केस था a प्लस 1 वाला। सेकेंड केस देखते हैं अब, व्हेन b को हमने -1 लेते हैं तब रिजल्ट क्या होगा, व्हेन b इज टेकन एज -1, so a minus 1 to the whole power n will become a to the power n minus या फिर a to the power n plus, अभी भी इसको वही रहने देते हैं, n c 0 था, नेक्स्ट विल बी n c 1 a to the power n minus 1 into b is -1, तो -1 to the whole power 1 plus n c 2 a to the power n minus 2 into -1 whole squared and so on, and lastly n c n minus 2 a square -1 to the power n minus 2 plus n c n minus 1 a into -1 to the power n minus 1। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, प्लस एन सी एन माइनस 1 ए टू द पावर 1 -1 टू द पावर n minus 1 प्लस एन सी एन ए टू द पावर 0 -1 टू द होल पावर n। ओके, और अल्टीमेटली -1 टू द पावर ऑड इज ऑलवेज -1 एंड -1 टू द पावर इवन, यानी कि -1 मल्टीप्लाइड बाई इवन नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज +1। ओके, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा हो जाएगा a टू द पावर n, सेकेंड में -1 टू द पावर 1 है, तो दिस विल बी माइनस एन सी 1 a टू द पावर n -1, नेक्स्ट में -1 का होल स्क्वायर है, इवन पावर है, तो प्लस एन सी 2 a टू द पावर n -2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, और ऐसे ही सारे लास्ट टर्म तक सारे के सारे टर्म आएंगे। लास्ट टर्म में हमारा -1 टू द पावर n -1 आएगा, हमें नहीं पता कि n ऑड है या इवन है, बट अल्टीमेटली इंटू n इंटू a, और फिर लास्ट टर्म में बाहर आएगा एन सी एन दैट इज इक्वल टू 1
-1 to the power n. Okay, so this complete expression, this is again a multiple of a को बाहर ले लोगे तो अंदर हमारा एक्सप्रेशन बच जाएगा. सो a का मल्टीपल आएगा और प्लस -1 to the power n. So this can be written as a into k plus -1 to the power n. Okay, so a -1 to the whole power n ultimately becomes a multiple of k plus last term is -1 to the power n. So if n is odd, in that case a -1 to the power n is equal to a into k, और अगर n odd है -1 की पावर odd, that will be -1. So this will be multiple of a -1, and if n is even, this will be equal to a -1 to the power n will be equal to a into k plus 1. So these will be two cases. Okay, क्या है clear है? For example, let us say we are dividing 4 to the power 21 by 5, and question is what will be the remainder? 4 to the power 21 by 5, question is what will be the remainder? तो 4 to the power 21 है, 4 is 5 minus 1 to the power 21, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर इन दिस केस विल बी 5 minus 1 to the power 21. पावर हमारी क्या है? पावर ऑड है, तो फर्स्ट वाला केस है. सो दिस विल बी मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 into k -1, बिकॉज -1 to the power 21 होगा अल्टीमेटली. ठीक है, बेसिकली क्या होगा? 5k प्लस -1 to the power 21 डिवाइड बाई 5. सो दिस विल बी 5k -1 डिवाइड बाई 5, और रिमाइंडर विल बी इक्वल टू -1. और रिमाइंडर अगर -1 आ रहा है, निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो जिस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे, तो ऐड 5, तो रिमाइंडर अल्टीमेटली विल बी 4. ओके, बट समझना ये कि यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर हमारा आएगा, -1 आएगा रिमाइंडर अगर पावर ऑड है तो, और यही पावर अगर हमारा इवन होगा, लेट अस से 7 to the power 24 एंड दैट इज डिवाइडेड बाई 6, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? नहीं, 7 तो +1 में आ गया, 5 to the power 24, 5 to the power 24 that is divided by 6, what will be the remainder? So 5 is 6 minus 1 to the whole power 24, and that is being divided by 6, so remainder will be 6 का multiple plus 1 divide by 6, so remainder will be equal to plus 1. Clear है? Okay, now with this understanding questions को solve करते हैं. क्या था? clear है? Okay, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, for all natural numbers n, 2 to the power 3n minus 1 is always divisible by which of the following? 2, 3, 5 or 7? 2 to the power 3n minus 1. Okay, 2 to the power 3n can be written as 2 to the power 3 to the whole power n minus 1, or this is 8 to the power n minus 1. So किस नंबर से डिविजिबल होगा? दिस इज बेसिकली a to the power n, और 1 की कोई पावर लिख सकते हो, 1 to the power n भी लिख सकते हो, उसको हो गया a to the power n minus b to the power n के केस में, है कि नहीं? और फिर n हमारा इवन हो या फिर ऑड हो, दिस विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 8 minus 1 a minus b, that is equal to 7. So answer will be option D. ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा. ठीक है, इफ n is even, in that case 8 plus 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 9 से, बट ओनली व्हेन n is even, एंड ऑड पे नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 9. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n is the natural number 99 to the power 2n minus 42 to the power 2n is divisible by which of the following? 19, 47, 141, a and c both. in each question pause the video, अपने एंड पे ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखो. ठीक है, सो बाय विच दिस विल बी डिविजिबल. ठीक है, अल्टीमेटली जो भी चीज हमने सीखा है टू द पावर प्लस n प्लस माइनस b टू द पावर n, हमें वही अप्लाई करना है, यहाँ पे वही अप्लाई करना है, बस समझना है कैसे अप्लाई करेंगे. तो 99 टू द पावर 2n माइनस 42 टू द पावर 2n, तो पावर्स हमारी क्या है? पावर्स इवन है, बिकॉज 2n है, और 2n यानी कि इवन हो गया, बिकॉज n इज अ नेचुरल नंबर. सो अगर पावर इवन है तो दिस विल बी डिविजिबल बाई a माइनस b, यानी 99 माइनस 42 विच इज 57, बिल्कुल होगा 57 डिविजिबल, और 99 प्लस 42 से भी डिविजिबल होगा,
और 99 प्लस 42 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 141, तो डिविजिबल बाई 141 एज वेल। ओके, क्लियर है। और 57 इज 19 इंटू 3, तो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 57 इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई इट्स फैक्टर्स। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 57 it will also be divisible by its factors. This should be obvious, but फिर भी मेंशन कर देते हैं, if a number is divisible by a composite number x, it will also be divisible by its factors. But not vice versa, which implies कि if it is divisible by one of the factors, that does not mean कि x से भी divisible होगा। Okay, clear? So 57 से divisible है, यानी कि 19 से भी divisible होगा, 3 से भी divisible होगा, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। बट क्या सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है? नो, 141 से भी तो divisible है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, isn't it so? बिकॉज पावर इवन है, तो 99 प्लस 42 141 से भी डिविजिबल है, बट 141 अल्टीमेटली क्या है, दिस इज ऑल्सो 47 इंटू 3, दिस इज ऑल्सो 47 इंटू 3, तो यानी कि 47 से भी तो डिविजिबल होगा, कुछ लोच है इसमें, 47 से भी डिविजिबल होगा, तीनों नंबर से डिविजिबल होने वाला, ऑप्शंस में थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। 19 से भी डिविजिबल है, 47 से भी और 141 से भी है। ओके, क्लियर है, बिकॉज 47 का मल्टीपल ही तो है 141, तो 141 से डिविजिबल है तो 47 से तो होगा ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n 5 to the power 4n minus 6 to the power 3n is always divisible by which of the following? 5 to the power 4n minus 6 to the power 3n, पावर्स डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, तो कोई भी कंक्लूजन हम स्ट्रेट अवे ड्रॉ नहीं कर सकते, स्ट्रेट अवे नो कंक्लूजन, बिकॉज सबसे पहला काम पावर्स मस्ट बी इवन। हमने जो भी सीखा है वो किसके लिए सीखा है, a to the power n प्लस माइनस b to the power n के लिए, तो पावर्स इक्वल है दोनों केसेस में, ठीक है। सबसे पहले पावर्स को इक्वल करेंगे, so this can be written as 5 to the power 4 to the whole power n minus 6 to the power 3 to the whole power n, so this will be 5 to the power 4 will be 625 to the power n minus 216 to the power n, so this will be divisible by a minus b, यानी कि 625 minus 216 which is 409, which is 409, isn't it so? तो 409 से डिविजिबल होगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज 65 टू द पावर 13 minus 23 to the power 13 plus 82 to the power 13 minus 6 to the power 13 is divisible by which of the following? 6, 42, 57 and 59. So if we check first two terms, 65 to the power 13 minus 23 to the power 13 odd powers है, odd powers है, तो divisible by 65 minus 23 which is 42, और सेकेंड पार्ट को देखें, so this is divisible by 82 minus 6 that is 76. फर्स्ट पार्ट 42 से डिविजिबल, सेकंड पार्ट 76 से डिविजिबल है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में? क्या कुछ कॉमन है? The only thing that is common is because this is 2 into 3 into 7. This is 2 into 2 into 19. So highest common factor is 2 only. So यानी कि पूरा हमारा टर्म is divisible by 2, यानी कि इवन है, सम इज इवन, कंप्लीट सम इज इवन। बस 2 से डिविजिबल आ रहा है, 3 से डिविजिबल तो नहीं आ रहा है, बिकॉज फर्स्ट पार्ट तो डिविजिबल है 3 से, फर्स्ट पार्ट तो डिविजिबल है 3 से, बट 82 to the power 13 minus 6 to the power 13 is not divisible by 3, बिकॉज 6 का पावर 13 तो डिविजिबल है 3 से, बट 82 3 का मल्टीपल थोड़ी है, तो अल्टीमेटली हमारा नंबर 2 से डिविजिबल तो आ रहा है, 3 से नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। सिमिलरली 42 से डिविजिबल फर्स्ट पार्ट तो आ रहा है, सेकंड पार्ट नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। 19 से डिविजिबल सेकंड पार्ट आ रहा है बट फर्स्ट पार्ट नहीं आ रहा है, और सेकंड पार्ट 19 से डिविजिबल आ रहा है बट 3 से भी नहीं आ रहा है,
तो 57 भी आंसर नहीं हो सकता है, बट अभी तो 59 भी नहीं दिख रहा है, तो यानी कि अभी हमें कुछ और जुगाड़ भी करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ इतना क्लियर है कि 6 से डिविजिबल तो नहीं है प्रेजेंट कंडीशन में, 42 से डिविजिबल भी नहीं दिख रहा है प्रेजेंट कंडीशन में, 57 से भी नहीं दिख रहा है, ओके, बट स्टिल 59 से भी तो नहीं दिख रहा है, तो हमें कुछ और जुगाड़ भी करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे कि थोड़ा सा नंबर्स को आपस में जंबल कर देते हैं। तो वी कैन राइट दिस एज 65 टू द पावर 13 माइनस 6 टू द पावर 13 प्लस 82 टू द पावर 13 माइनस 22 टू द पावर 13। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, 65 माइनस 6 यानी कि 59 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 59 होगा। सेकंड पार्ट आ रहा है 82 माइनस 23, तो दिस विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 59, बोथ पार्ट्स आर डिविजिबल बाई 59, तो आंसर इज ऑप्शन डी क्लियरली, बोथ पार्ट्स आर डिविजिबल बाई 59, तो आंसर इज ऑप्शन डी क्लियरली। इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है। और सिंस हमारा नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, वी नो फॉर श्योर दैट इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, because first part in this case was divisible by 3 और 6 to the power 13 divisible by 3 है, but 82 to the power 13 this part is not divisible by 3। भाई बाकी सब कुछ 3 से 3 का मल्टीपल है, बट एक टर्म हमारा 3 का मल्टीपल नहीं होगा, तो टोटल हमारा जो सम है वो भी 3 का मल्टीपल नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि 27 में हमने ऐड किया 9, 9 में ऐड किया 81, बस एक टर्म 5 ऐड कर दिया, तो हमारा जो सम आएगा दिस विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 3, नहीं होगा, बिकॉज ये सब तो 3 का मल्टीपल है बट 5 नहीं है ना, और 5 को भी तो ऐड कर रहे हो ना, मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हो। अगर मल्टीप्लाई कर रहे होते सारे टर्म्स को तो डेफिनेटली 3 का मल्टीपल हो जाता, बट क्योंकि ऐड कर रहे हैं उसमें से एक टर्म हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है, एक से ज्यादा होते ना होते मल्टीपल तो पॉसिबिलिटी बनता, बट एक अकेला टर्म बेचारा है जो कि 3 का मल्टीपल है नहीं, तो वो पूरे को खराब कर देगा, पूरा हमारा जो सम है दैट विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 3, बट सिर्फ एक टर्म होगा तब ऐसा है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा टर्म होंगे तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम इसमें 4 भी ऐड कर दो, अब ना तो 5 मल्टीपल है 3 का, ना 4 मल्टीपल है 3 का, बट अब 5 प्लस 4 मल्टीपल है 3 का, 5 प्लस 4 इज 9, अब हमारा 3 का मल्टीपल बन जाएगा। ठीक है, तो अगर एक अकेला टर्म है तो हम श्योर हैं, एक से ज्यादा टर्म ऐसे होंगे जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है तब फिर श्योर नहीं है हम। ओके, क्लियर है? एंड यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट 82 टू द पावर 13 क्या है, दिस इज 81 प्लस 1 टू द पावर 13। जब इसको डिवाइड करोगे 3 से या फिर 81 से डिवाइड कर दोगे अल्टीमेटली, तो भी हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा +1, और 3 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर हमारा +1 ही आएगा। जब 81 से डिवाइड करने पे आ रहा है, 81 3 का मल्टीपल ही तो है। ठीक है, ओके, क्लियर है? क्या बात समझ में आती है? तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, और ऑप्शन ए बी सी हो ही नहीं सकते हैं, बिकॉज बी में भी क्या है, 42 क्या है अल्टीमेटली 14 इंटू 3 है। जब 3 का मल्टीपल है ही नहीं हमारा टर्म, तो 14 का मल्टीपल हो भी तब भी फर्क नहीं पड़ता, तब भी आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली फॉर 57 19 इंटू 3, 3 का मल्टीपल नहीं है तो 19 का मल्टीपल हो भी तो भी फर्क नहीं पड़ता, हालांकि 19 का मल्टीपल भी बन नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, बट इवन इफ इट टर्न्स आउट टू बी मल्टीपल ऑफ 19, 3 का मल्टीपल तो फॉर श्योर नहीं है, तो बी और सी आंसर नहीं हो सकते। ओके, ए भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, let n is equal to 72 to the power 3 minus 55 to the power 3 minus 17 to the power 3, तो n is divisible by which of the following numbers, 3, 7, 13 और 17 given है ऑप्शंस में। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2000। ओके, सो फिर से हमें जुगाड़ करना पड़ेगा, दोनों मेथड से सीखेंगे, पहले एक बार बाइनोमियल वाले मेथड से बाद में सीख लेंगे, पहले अपने कन्वेंशन मेथड से समझते हैं इसको। सो n is equal to 72 होल क्यूब माइनस 55 होल क्यूब माइनस 17 होल क्यूब। Focus on this part. 72 to the power 3 minus 55 to the power 3, पावर ऑड है, ऑड पावर है, 72 माइनस 55 यानी कि डिविजिबल बाई 72 माइनस 55 17 से डिविजिबल होगा, और इसके बाद में सब्ट्रैक्ट भी जो कर रहे हैं वो भी 17 का ही मल्टीपल है, तो पूरा हमारा टर्म n विल बी डिविजिबल बाई 17, तो 17 से तो पक्का डिविजिबल है। क्लियर? ओके, अब थोड़ा जंबल करते हैं इसको। n can also be written as 72 to the power 3 minus 17 to the power 3 minus 55 whole cube. Now focus on first part. So 72 minus 17, this is 55, तो divisible by 55, पावर ऑड है, और बाद वाला टर्म भी तो 55 का मल्टीपल ही है, सो कंप्लीट n is also divisible by 55, 17 से डिविजिबल है और 55 से भी डिविजिबल है। 55 क्या है अल्टीमेटली, 55 is 5 into 11, यानी कि 17 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, बट हमें 5 और 11 तो कहीं पे दिया नहीं है।
5 और 11 तो कहीं पे दिया नहीं है, तो क्या कोई बेनिफिट होगा इससे? नहीं होगा, नहीं होगा, तो कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो n कैन ऑल्सो बी रिटन एज 72 क्यूब माइनस, माइनस साइन कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 17 क्यूब प्लस 55 क्यूब, 17 क्यूब प्लस 55 क्यूब, और 17 क्यूब प्लस 55 क्यूब पावर ऑड है, तो दिस विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 17 प्लस 55 विच इज 72, और ये 72 से डिविजिबल है। फर्स्ट टर्म इटसेल्फ इज 17 का क्यूब, तो ये भी 72 से डिविजिबल है, हमारा n भी 72 से डिविजिबल होगा, तो 72 इज अनदर नंबर जिससे कि डिविजिबल होगा, और 72 आ जाएगा हमारा 8 इंटू 9, यानी कि 8 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, और अगर 9 से डिविजिबल है 3 से डिविजिबल तो है ही है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर, बोथ 3 एंड 17, बोथ 3 एंड 17। क्या ये पार्ट क्लियर है? दैट आंसर विल बी बोथ 3 एंड 17 से डिविजिबल होगा। ओके, क्लियर? अब एक बाइनोमियल एक्सपेंशन वाले मेथड से भी देख लेते हैं। So if you have to check, we have to check basically by 3, divisibility by 3, divisibility by 7, divisibility by 13 and divisibility by 70. Okay, and in case of 3, n can be written as 72 cube, 72 तो ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, है कि नहीं? 72 को अगर ब्रेक करोगे तो दिस इज 72 प्लस 0 विच इज द मल्टीपल ऑफ 3, 72 तो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, का होल क्यूब, माइनस 55 इज 54 प्लस 1 का होल क्यूब, और 17 इज 18 माइनस 1 का होल क्यूब, सो माइनस 54 प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 18 माइनस 1 का होल क्यूब। सो फर्स्ट पार्ट में तो जीरो रिमाइंडर आएगा, 72 का होल क्यूब विल बी डिविजिबल बाई 3, 3 से कंप्लीट डिविजिबल होगा क्योंकि 72 3 का मल्टीपल ही है। यहाँ पे 54 प्लस 1 का होल क्यूब, अल्टीमेटली लास्ट में टर्म क्या बचने वाला है? 54 का मल्टीपल तो होगा ही, दिस विल अल्टीमेटली बी, दिस विल बी 54 का मल्टीपल प्लस 1, एंड लास्ट टर्म विल बी 18 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 का होल क्यूब यानी कि माइनस 1, और 54 तो कंप्लीट डिविजिबल है 3 से, तो बचने वाला क्या है? सिर्फ और सिर्फ बचेगा माइनस 1, और यहाँ पे बचेगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1, बिकॉज 18 भी मल्टीपल है 3 का, तो अल्टीमेटली 0 बचा, सो दैट इंप्लाइज दैट दिस इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, इतना लिखना नहीं था, इतना बस समझाने के लिए बताया तुमको। 72 का होल क्यूब है यानी कि 3 का मल्टीपल है, बाद में बच रहा है हमारा 54 प्लस 1 यानी कि माइनस में बचेगा 1 क्यूब, तो माइनस 1 हो गया, और लास्ट में बच रहा है माइनस 1 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 1 यानी कि अल्टीमेटली रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, कंप्लीट डिविजिबल बाई 3 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली वी कैन चेक बाई अदर नंबर्स, बट अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो 3 के साथ में 13 आ रहा है और 17 आ रहा है, 7 तो कभी आ ही नहीं रहा, तो 7 को चेक करने की फिर जरूरत नहीं है क्योंकि 3 से डिविजिबल निकल गया है, 3 से डिविजिबल निकल गया, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा और ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा, बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब किसी एक से चेक करो, 13 से चेक कर लो लेटर से, अगर हम 13 से चेक करते हैं सो 72 क्या है? 72 इज 68 प्लस 4 होल क्यूब माइनस 13 से चेक कर रहे हैं, 13 से कर रहे हैं कि 17 से कर रहे हैं? 17 से क्यों करने लगे? पहले 17 से ही कर लेते हैं, 17 से ही कर लिया जाए। ओके, तो क्योंकि ऑलरेडी 17 क्यूब भी दिया हुआ है, तो 68 प्लस 4 होल क्यूब माइनस 55 इज 17 3 जा 51, 51 प्लस 4 होल क्यूब और माइनस 17 होल क्यूब, तो रिमाइंडर लास्ट में क्या बचेगा? 68 प्लस 4 होल क्यूब को एक्सपेंड करोगे तो हमारा मल्टीपल आएगा 68 का, और लास्ट में आएगा 4 क्यूब एक टर्म। सिमिलरली 51 प्लस 4 के होल क्यूब को एक्सपेंड करोगे तो हमारा मल्टीपल आएगा 51 का, और लास्ट टर्म आएगा 4 का होल क्यूब और माइनस 17 क्यूब। 68 का मल्टीपल 17 का मल्टीपल ऑलरेडी है, तो यहां से तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, यहां से भी रिमाइंडर 0 मिलेगा, यहां पे बचेगा 4 क्यूब और माइनस 4 क्यूब माइनस 17 क्यूब, सो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बच गया माइनस 17 क्यूब जो कि अपना खुद का ही 17 का मल्टीपल है, तो यहां से रिमाइंडर भी 0 ही मिलेगा, सो 17 से भी डिविजिबल है कंप्लीटली, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यू कैन चेक बाई 13, और 13 के केस में 0 नहीं आएगा रिमाइंडर। ओके, इज दैट क्लियर भाई? 13 के केस में रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा। ये लंबा प्रोसेस है, एग्जाम में हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे अपना, इसी से सॉल्व करेंगे, बट ये भी समझ में आना चाहिए, बिकॉज किसी क्वेश्चन में कभी इस मेथड का भी जरूरत पड़ेगा, कभी इस मेथड का भी जरूरत पड़ेगा, तो ये मेथड भी पता तो होना चाहिए, है कि नहीं? ओके, क्लियर है?
ठीक है, सो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, फिर रैप अप करते हैं सेशन को. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कैट 2002. 7 to the power 6n minus 6 to the power 6n where n is an integer and positive integer n, so is divisible by which of the following numbers? 7 to the power 6n minus 6 to the power 6n. सबसे पहले चेकआउट द पावर्स. पावर्स इक्वल है बट पावर्स साथ में क्या है, 6n इज द पावर, यानी कि पावर्स इवन भी है. और अगर पावर इवन है और a टू पावर माइनस b टू पावर है तो a माइनस b से भी डिविजिबल होगा और a प्लस b से भी डिविजिबल होगा, यानी 7 माइनस 6 से भी डिविजिबल होगा, 7 प्लस 6 से भी डिविजिबल होगा, विच इज 1 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है. 13 से डिविजिबल तो आ रहा है, विच इज ऑप्शन ए. बट लास्ट ऑप्शन दिया है मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि अभी हमें और भी चेक करना पड़ेगा. सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 7 स्क्वायर टू द पावर 3n माइनस 6 स्क्वायर टू द पावर 3n. पावर ऑड है तो डिविजिबल किससे होगा, 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर से, यानी कि 49 माइनस 36 है तो 13 से डिविजिबल होगा, यानी कि यहां से कुछ भी नया नहीं पता चला. 13 से डिविजिबल है तो पहले ही पता था. तो दूसरा जुगाड़ करते हैं, बिकॉज 6 इज 3 into 2, तो अब लिख सकते हैं 7 क्यूब टू द पावर 2n माइनस 6 क्यूब टू द पावर 2n. 6 क्यूब टू द पावर 2n और 7 क्यूब क्या हो जाता है, 7 क्यूब इज 343 टू द पावर 2n माइनस 6 क्यूब इज 216 टू द पावर 2n. और क्योंकि पावर इवन है तो इट विल बी डिविजिबल बाय 343 minus 216 also divisible by 343 plus 216 और first comes out to be 127 और this is 559. तो also divisible by 127 also divisible by 559. तो सारे ही ऑप्शन से डिविजिबल है. ऑप्शन डी क्लियरली आंसर आएगा. ए से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, 127 से भी डिविजिबल है, 559 से भी डिविजिबल है. 1 से तो सभी डिविजिबल होते हैं, 1 से तो सभी डिविजिबल होते हैं. सो आंसर विल बी ऑप्शन डी इन दिस केस. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्लियर है? ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन. आई बिलीव जो भी कुछ हमने डिस्कस किया इस सेशन में वो समझ में आया होगा और सीखे होगे. अगर कहीं भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, उसको भी एंटरटेन कर लेंगे. अच्छा है, जो बाइनोमियल वाला चीज़ें हमने देखा है इसको रिमाइंडर्स में ज़्यादा डिटेल में समझेंगे. तो अगर अभी समझने में थोड़ा दिक्कत भी आए कोई बात नहीं, जो जो समझ में आया जितना समझ में आया उतना समझ दो. बाकी रिमाइंडर में और भी डिटेल में ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे तुम्हें जो भी डाउट्स रहे होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे. ओके, यहाँ पे मैंने सोचा कि डिविजिबिलिटी डिस्कस करें तो साथ में इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लेते हैं, फिर अल्टीमेटली रिमाइंडर में तो और भी बेटर तरीके से डिस्कस करेंगे. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.